ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं today's lecture. Okay, everyone is listening to me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so we are going to talk today about some very important phenomenon related with waves, that is the reflection and refraction of electromagnetic waves. ठीक है जी. Reflection and refraction are the two very common phenomenon which are associated with any types of waves, and here we are specifically talking about the electromagnetic waves. वैसे तो आप लोगों को पता ही है, शायद पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव, जैसे कि साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन हमने पढ़ी थी. व्हाट वाज रिफ्लेक्शन? इसी चैप्टर में हमने साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन डिस्कस की है ना जी. Yes, sir. किए. व्हाट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स? जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, या क्या मीनिंग था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का? जी. सर साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से हिट करके हमें जब वापस आती है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. जो साउंड वेव्स जब किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएं, वापस आ जाएं, ठीक है. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल करती हैं एंड दे reflect back, means they strike at the boundary between the two media and they return back in the same media. जैसे मैंने एग्जांपल भी उस वक्त दी के समझाया था आपको. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. just like you hit a ball with a ball and the ball is returned back to you after striking the ball. ठीक है जी. Now we are talking about the reflection and refraction of the light waves or electromagnetic waves. So what happens when light or electromagnetic waves, when we talk about light, it means we are talking about electromagnetic waves, because light is a form of electromagnetic waves. Okay, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So what happens when light strikes at the boundary of two media? Just like, look at this diagram. What is happening here? This is an incident wave. Incident wave means the wave which is coming to strike at the boundary. This is the boundary between two media. दो different medium है. Just like कि जैसे लाइट जैसे वाटर सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो वो एयर से एंटर हो रही है किसमें? वाटर में. तो एयर इज वन मीडियम एंड वाटर इज अदर मीडियम, एंड दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया. जो वाटर सरफेस है, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया. तो ये एक इंसिडेंट वेव है, उसको वेव की फॉर्म में दिखाया है उसने. और व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन इट स्ट्राइक्स एट द बाउंड्री, it may be possible that some part of the wave is reflected back after striking at the boundary. Some part of the wave is reflected back into the same medium in which it was traveling before striking. This is called reflection of the wave. इसको हम क्या कहेंगे? Reflection of the wave या
simply reflection. Okay, whereas some part of the incident wave may travel into the next medium, and this part of the wave which has traveled across the boundary between the two media, this is called the refracted wave. This is called the refracted wave. And you can see there is a difference between reflection and refraction at the boundary between the two media. अब ये डिफरेंस क्या है, इसको हम भी थोड़ा अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं. Okay, the same diagram has been shown here with a ray. Ray means you can see this arrow, and this arrow indicates the direction in which light is traveling, and this is the reflected waves direction, and this is the refracted waves direction. And this central line, this dotted line, is the normal or perpendicular to the boundary between the two media. This is called normal. ये जो डॉटेड लाइंस को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे it says when light strikes the surface of an object or passes from one material into another, part of the energy associated with the wave is number one, reflected back into the first material, number टू रिफ्रैक्टेड इनटू द सेकंड मटेरियल. अभी जो आपको डायग्राम में मैंने बताया, कुछ हिस्सा लाइट वेव का जो उसकी एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी फिर फर्स्ट मीडियम में जिससे वो ट्रेवल करके ऑलरेडी आ रही थी, और कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट कर देगा इनटू द नेक्स्ट मीडियम. At every surface, we expect to see a reflected wave traveling back into the first medium and a refracted wave traveling forward into the second medium. होता क्या है कि इन डायग्राम्स लाइंस, एरोड लाइंस कॉल्ड रेज आर फ्रीक्वेंटली यूज, जैसे यहाँ आपको बताया है. ठीक है ना. दिस इज ए रे डायग्राम. दिस इज कॉल्ड ए रे डायग्राम, जिसमें आप एरोज यूज करते हैं. इसको क्या कहते हैं, रे डायग्राम. हेलो, इज एवरीवन देयर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो दिस इज Yes, कॉल्ड द sir. रे डायग्राम. और ये जो है ये भी रे डायग्राम की तरह ही है, बट इसमें हमने इंडिकेट किया है वेव को. ठीक है, एक्चुअल वेव को दिखाया किस तरह वो ट्रेवल करती हुई आ रही है. So in the coming figures, we will be using the ray diagram to understand the concept of reflection and refraction. Usually we usually discuss simple reflection and refraction in terms of the following angles. ठीक है ना. इसमें कुछ एंगल्स इन्वॉल्व हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. एक होता है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये देख रहे हैं आप सब लोग फिगर में, ये आई लिखा हुआ है, स्मॉल आई. This is called angle of incidence. And what is angle of incidence? The angle between the incident wave and the normal to the boundary. ये जो नॉर्मल लाइन है, ये वाली डॉटेड लाइन, इसके दरमियान एंगल जो होता है इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के दरमियान एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. Angle of incidence, the angle between any incident ray and the normal to the surface, a line perpendicular to the surface. ये surface है जो कि दो मीडिया की बाउंड्री है, मतलब सरफेस के ऊपर जहाँ पे लाइट रे आके स्ट्राइक कर गई. ओके जी. एंड द सेकेंड वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी. And this is the angle between the reflected wave, this one, and once again the normal to the boundary between two media. This is called angle of reflection. And then we have another angle
which is the angle of refraction. जो वेव का हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ था, इट ट्रेवल्ड इन टू द नेक्स्ट मीडियम, तो इसके जो एंगल है, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है रिफ्रैक्टेड वेव का, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. द एंगल बिटवीन एनी रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये वाला जो एंगल है, दिस वन. ओके. So while talking about reflection and refraction, we will be talking mostly in terms of, or at any instant, we will be talking about the angle of incident and the angle of uh, reflection and angle of refraction. Now, there are two very important laws of reflection. ठीक है. तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? नंबर वन रूल ऑफ द लॉ इज, ठीक है ना, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the reflected ray are all in the same plane. क्या मतलब है इसका? दिस इज रूल नंबर वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और इसको आपने याद रखना है हमेशा कि जो इंसिडेंट रे है ये, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन, एंड द normal, this normal line, they are all lying on the same plane. Just like the, you can see the figure, ये तीनों जो लाइंस हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो इस पेज के ऊपर तीनों एक ही पेज पे ड्रॉ की गई है ना. मतलब ये तीनों एक ही प्लेन से पे एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. Even if you draw, you can understand this in this drawn diagram here. Okay, all these three rays, incident ray or the incident wave, normal and the reflected ray, they are all lying in the same plane of the page. So this is the rule number one. And second rule says the angle of incidence is equal to the angle of reflection. इट इज ऑलवेज, रिमेंबर, हमेशा क्या होगा? जब भी रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन, should always be and will always be equal to the angle of reflection. These two angles are always equal to each other in any types of reflection of waves. Okay ji. These are very important, very simple two rules which would be applied in any type of ray diagrams or any type of discussion which would be following soon here. So look at this key concept here. Look at this key concept. It says drawing ray diagrams for plane mirrors. The plane mirrors, the mirrors which are common mirrors which we use in everyday life. तो मिरर्स क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. डू यू नो दिस फैक्ट एवरीवन? Yes, sir. Mirrors reflect light, so how we can draw the ray diagrams for plane mirrors applying these two rules above? So what it says, for any ray from a point source, we can construct a ray diagram involving reflection from a plane reflective surface by the following three simple steps. मतलब
कोई भी अगर आपके पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स जस्ट लाइक जैसे सन है, इसको हम इट इज सो डिस्टेंट, so far apart from us that we can consider it as a point source of light. Similarly, a tube, a bulb जो है, जैसे हम घर रूम में यूज करते हैं, तो बल्ब भी एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है. कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिससे रेज ऑफ लाइट दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स a reflecting surface, we can apply these two rules to draw the simple reflecting the ray diagrams of the light source, or sorry, of the rays which are reflecting from that surface. सबसे पहला स्टेप क्या है जी? ड्रॉ द सरफेस एंड द नॉर्मल टू द सरफेस. ये आपने वो एक सरफेस ड्रॉ कर ली, ठीक है, चाहे ये एक प्लेन मिरर है या नहीं है, कोई भी सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये उसका नॉर्मल है. ये तो आपने सिंपली एक पेज पे ड्रॉ कर लिया. दिस इज द सरफेस, this is the normal. And second one, draw the incident ray as an arrow towards the surface at the angle of incidence. Simply draw a straight arrow striking at the surface, but it should make an angle of incidence with the normal to the surface, just like this ray. You can see that just like this ray. Okay, this is your second step. And then step number 3 is, because we are talking about reflection of the wave, so we will be at the moment we will not be showing refracted part of the wave. Step number 3 says draw the reflected ray as an arrow pointing away from the surface at the angle of reflection, remembering that the angle of incidence equals the angle of reflection. तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इसी एरो को जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह लगाई थी, बिल्कुल एक वैसी ही एरो लगा देंगे आप, बट दिस टाइम पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये आपकी एक रे डायग्राम कंप्लीट हो गई. किसी भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को की रेज को आपने ये इंडिकेट कर दिया है कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके किस तरह रिफ्लेक्ट होंगी. दिस इज अ वेरी सिंपल आइडिया विच यू माइट हैव लर्नड इन योर स्कूल डेज. आपने अपनी 9th-10th की फिजिक्स में भी ये रे डायग्राम ड्रॉ करनी सीखी होगी. जिन लोगों ने एटलीस्ट मैट्रिक में एटलीस्ट फिजिक्स पढ़ी है, तो कम से कम उनको इतना थोड़ा सा आइडिया तो पता होगा कि हम किसी सरफेस की से स्ट्राइक करके लाइट की रे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये बिल्कुल 3 वही स्टेप्स हैं जो आपने वहाँ पे पढ़े थे. ओके जी, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन टिल Yes, sir. दिस पॉइंट? Yes, sir. जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे. Should we proceed further? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. अब आप इसी चीज को, इसी आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और आप ये देखें कि लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है, हाउ मिरर्स कंस्ट्रक्ट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मिरर्स कैसे इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में जब मिरर में देखते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे नजर आता है और उसके पीछे रे डायग्राम कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे शो किया गया है. इन दिस फिगर कैन सी दिस इज अ प्लेन मिरर. अच्छा, मिरर में क्या होता है आप सबको पता है कि मिरर की एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, जिसके पीछे उसकी सिल्वर पॉलिश्ड होती है. तो जो जिस सरफेस को आप विजुलाइज कर रहे हो, देख रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है.
और उसके पीछे उसको सिल्वर करके उसकी एक सरफेस को मतलब प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया जाता है। ओके, समझ आ रही है बात सबको? सो दिस इज अ सिंपल प्लेन मिरर and this is an object placed in front of the mirror. Look at this arrow and this dot point is an object which is placed in front of the mirror. अब आप इसका इमेज, जो आप इमेज देखते हैं मिरर में, तो उसमें कुछ चीजें आपने कभी नोट की हैं कि जितने डिस्टेंस पे आप मिरर के सामने खड़े होंगे, your image will be produced at the same distance inside the mirror. कैसा नहीं होता? होता है सर। मतलब आपको अपना इमेज, अपना पोस्चर जो है, फर्ज करिए ना आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो योर बॉडी पोस्चर, अगर आप मिरर के नज़दीक खड़े होंगे तो आपको नज़दीक नजर आएगा मिरर में, दूर खड़े होंगे तो उतना ही दूर नजर आएगा। ठीक है ना? ओके, so it means the distance of the object from the mirror and the distance of the distance of the distance of the okay, are you listening everyone? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So the distance of the object from the mirror and the distance of the image from the mirror, they are the same. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। इस रे डायग्राम में देखें, you can clearly see that you have been shown here two rays of the light which are being reflected from the after striking of the object at the arrow side, the arrowhead, and after striking the mirror surface, it is reflecting back and entering your eye. We also see through the reflection. ठीक है ना? और similarly another ray of light, incident wave from the object is after striking the surface, it is being reflected back into the eye. तो ये एक टॉप से रे आपको शो की गई है और एक बॉटम से, एंड यू कैन सी कि दिस टॉप टू बॉटम, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से दो रेज ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बिकॉज आपको तो पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आ रहा होगा ना। सो देयर मे बी काउंटलेस नंबर ऑफ रेज, they are striking at different parts of the object, and after striking the mirror they are reflecting back into the eye, but only two have been shown here just to give you the idea कि मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो स्ट्राइक करने के बाद दे आर ऑल स्ट्राइकिंग एट द बाउंड्री and this is the normal to the boundary and the rays are being reflected back, and you can see the image of the object. This is the image of the object, this is the extension of the reflective waves. ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रही है? एक्सटेंशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। ये जस्ट दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी इमेज। दिस इज नॉट अ रियल इमेज, दिस इज एन इमेजिनरी इमेज। ओके जी। सो हाउ रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ? इट सेज प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेसेस आर एनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना? प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, बहुत सारी सरफेसेस जो हैं हम एवरीडे लाइफ में जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती हैं। द मिरर्स दैट हैंग इन आवर हाउसेस यूज द रिफ्लेक्शन provided by a flat glass surface.
silvered on the back. A fiber optic, हम fiber optics को discuss करेंगे later on. A fiber optic cable uses reflection from a flat surface to send the wave down the tube. Okay, फाइबर ऑप्टिक्स की डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स कैसे रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को एम्प्लॉय करके दे कम्युनिकेट सिग्नल्स. ओके, we when we look into a mirror, our eyes and brain calculate the position of the source of light. ठीक है ना. तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हमारी आईज में रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही होती है. उस पॉइंट सोर्स से, किसी पॉइंट सोर्स से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करके उससे रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज को सिग्नल मिलता है, एंड दैट सिग्नल इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन टू गिव यू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. सो basically our eyes cannot see without the phenomenon of reflection. So unfortunately we do this without taking into account the existence of reflection or refraction, and imagine the source to be directly down the ray that enters the eye. क्या मतलब है इस बात का कि हम ऑब्जेक्ट को जिसको विजुलाइज कर रहे होते हैं या जिस चीज को देख रहे होते हैं दैट इज थ्रू रिफ्लेक्शन, और हमारा ब्रेन ये कैलकुलेशन इस तरीके से कर रहा होता है कि जैसे वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के पास ही है. दिस लीड्स अस इमेजिनिंग दैट द सोर्स ऑफ लाइट इज बिहाइंड द प्लेन मिरर. ठीक है, इससे हम इमेजिन करते हैं कि जैसे सोर्स ऑफ लाइट जो वो बिहाइंड द मिरर है, पीछे से कोई उस पर लाइट पड़ रही है और वो हमें इमेज जो है वो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. ठीक है ना. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को की तरफ से आने वाली लाइट को ही रिफ्लेक्ट करती है टूवर्ड्स द आई एंड गिव अस अ सेंसेशन ऑफ द विजन. ठीक है जी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. we're just about the end today's lecture because ये 40 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग नहीं हो पाती इसमें. तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही सिंपल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आइडिया था, रिफ्लेक्शन का था, और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाती. तो हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ये लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज, इनकी रे डायग्राम कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. और उसके बाद इस चैप्टर का ये आपका लास्ट टॉपिक है. ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स. और जो ही ये टॉपिक ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह फिर जो है वो आपका एक मिड एग्ज़ाम जो है वो मे बी इन द नेक्स्ट वीक में आपका वो एक मिड एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होना है. ठीक है. इट मे टेक्स 2 lectures or so to discuss this topic completely. और ये इस टॉपिक के एंड पे आपका जो है वो ये चैप्टर 2 फिनिश अप हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका मिड होगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का. ठीक है जी. ओके सर. ठीक है ना. अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बता दें, इन्फॉर्म कर दें जो नहीं आ रहे, जो जूम की क्लास पे नहीं आ रहे, कि अपना मिड मिस ना करें. ठीक है, वो क्लास पे चाहे नहीं आ रहे लेकिन उनको बाद में अटेंडेंस में इशू हो सकता है, तो इन्वोक देम टू ज्वाइन द क्लास. ठीक है, और लेट देम नो कि जी मिड एग्जाम वो मिस ना करें. ओके एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that's it for today. Inshallah we'll meet in the next class Monday को. तो उसका भी मैं लिंक वगैरह भी आपको सेंड कर दूंगा. तो नासिर जस्ट प्लीज गिव मी द अटेंडेंस. ओके, भूलना नहीं. नासिर आर यू लिसनिंग? सर अभी भेज देता हूँ. ठीक है सर. Okay. Then see you tomorrow inshallah on Monday.
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. जी जा।